QS Squad, an initiative by Institute of Management Studies, Student Research Cell of TAVV Indore. And here we discuss things which are taught beyond the classrooms and which will cover all the pragmatic things done in the industry. And we'll try to have this conversation as candid as possible, sir. Okay. And welcome, sir. Thank you. And thank you for joining us, sir. And sir, we have Sachit Anand, sir. Sir has a variety of experience in supply chain management, not just in academy, but also in industry experience. So thank you so much, sir, again. And Thank you. Sir, before we start, we just want to know about yourself and what experience do you have in the industry as well as in the academic field. Okay. Luckily, I'm a product of DAVV itself. I've done my bachelor's in mechanical engineering from IET DAVV, right? After that, working for a few corporates, I went to London to do my master's in operations and supply chain management, right? And I am CIPS UK qualified level 4, right? I am a life member of CILT, right? And I'm an international blockchain consultant, which is advanced version of supply chain management. Most of the Western countries are today, looking into these blockchain analysis and how they can grow business with the help of blockchains, right? Apart from that, I'm a supply chain consultant, giving consultancy to many of the companies around India and globally, right? I'm a Six Sigma black belt champion as well, right? This is a little bit of introduction of mine, right? Let's start off with the topic. I know you might be having a lot of questions about supply chain management as well. So let's Thank you. dive in. Thank you so much, sir. Sir, we have a variety of questions from the supply chain, but before we start, I just want to know what is actually a supply chain. If we communicate to a person in a layman term or a lucid manner, so Okay. what is actually a supply chain? Okay, let's take an example, right? Let's take an example of buying a bread, right? Every household is buying bread, right? Let's go and start, with that example, right? First, while buying bread, where you go? It's the retail shop where you go. So that's the first cost center in the supply chain management, right? Then after retail, where does the retailer get the bread from? It is from the distributors, right? So that's the next cost center in the supply chain management, right? Then the bread from distributor, where it comes to distributor? From C&F agents, right? So carrying and forwarding agent are the third cost center, is the third cost center in the supply chain. अब C&F के बाद में C&F को ब्रेड कहाँ से आती है? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट सेंटर है जहाँ से ब्रेड का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, राइट? अब वो मैन्युफैक्चरर को बहुत सारा ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता होगा, राइट? अब जब वो ब्रेड बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगेगा तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? टीयर 1 सप्लायर के पास में जाएगा, जो कि जैसे कि आपका बहुत सारे ब्रेड बनाने के लिए क्या लगता है आपको? मैदा, आटा and all these things, right? And then you go to tier 2 supplier, and then tier 3 suppliers are the farmers जो wheat grow कर रहे हैं actually, right? So it is the complete supply chain. अब इन supply chains में क्या है? हर एक बिजनेस में, सप्लाई चेन्स में बोल लीजिए या बिजनेसेस में बोल लीजिए, हर एक बिजनेस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है. अब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उस मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे जहाँ पे ब्रेड का फॉर्म उसके बाद में चेंज नहीं होने वाला है. एक बार मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट सेंटर पे वो ब्रेड पैक हो गई तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, उसमें लॉजिस्टिकल फंक्शन ऐड हो जाएगा आगे जाके. अब उसको इनबाउंड या आउटबाउंड के सहारे ट्रैवल करना है कस्टमर तक, राइट? तो अब जितना भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पहले का हिस्सा है ना, इसको हम सप्लाई चेन में अपस्ट्रीम बोलते हैं, राइट? जितना भी मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर की साइड का हिस्सा है उसको हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं सप्लाई चेन की, ठीक है? ओके, एज सिंपल एज दैट. आई होप कि इससे आपको कुछ क्लियरिटी आया होगा, राइट? अब मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट आपको देता हूँ, राइट? अब सप्लाई चेन में, राइट, अब मैंने आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बताया. आज की तारीख में कंपनीज जो हैं वो पहले क्या करती थी? सिर्फ फोकस करती थी अपने डाउनस्ट्रीम की साइड पे.
Okay. आज की तारीख में कंपनी सब क्या कर रही हैं, अपने अपस्ट्रीम पे भी पैसा बचाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें एक लेवल के बाद में सैचुरेशन आ जाएगा, राइट? तो और कंपनीज ने ये रियलाइज किया है कि जो सपोर्ट फंक्शंस हैं बिजनेस के, उससे हम बहुत ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, राइट? अब जब हम ये कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं तो वो एक सप्लाई चेन अपना रूप अलग ले लेती है। लेकिन जब हम सिर्फ कस्टमर के रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाने की बात करते हैं तो सप्लाई चेन एक अलग रूप ले लेती है, राइट? उसको आगे समझेंगे कॉन्वर्सेशंस में कि वो अपने अपने रूप को कैसे चेंज कर रही है बेसिकली, राइट? Okay, sir. Sir, these days we are hearing this term supply chain right from the FMCG to pharma to defense also, right from the ministry level to industry level, or in the general public, in the colleges also we talk about the supply chain. In the newspaper also we heard these terms quite frequently. So how these terms gain so much importance in these days in current scenarios? If we compare with the how what's going around the world, and it has gained a lot of importance these days. So why it is so? See, basically, I will talk about India, right? Indian perspective के बारे में बात करेंगे, right? Yeah. We had very traditional business models in India, right? अब यहाँ पे क्या है, buyer used to define the setup process, a set of productions, standard operating procedures buyer खुद define करता था, right? And buyer used to dictate that. अब ये सिर्फ एक buyer और seller का एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें इनोवेशन नहीं था, राइट? और इसका रीजन ये है कि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और यहाँ पे जो भी हम मैसिवली प्रोड्यूस करते हैं या करते थे उसका कंजम्पशन बहुत इजीली इंडिया में हो जाता था, राइट? अब यहाँ पे द कंपोनेंट्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, राइट? हम डुअल सोर्सिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे कि अगर एक आदमी फेल हो गया तो ये हमारे एक कंट्री का यूँ समझ लीजिए फ्लेवर है बिजनेस करने का, कि हम एक आदमी पे ना भरोसा करते थे, दो आदमी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, राइट? बट जो नया सप्लाई चेन का रूप है, जो नया वी कॉल इट रिसर्जेंट इंडिया, उसमें हम सिंगल सोर्सिंग पे चले गए, राइट? We are changing the way we were doing businesses, right? और हम लोग थोड़ा रिजर्व थे, हम अपने बिजनेसेस के सीक्रेट को छुपा के रखते थे। आज की तारीख में वो चीज को चेंज होते हुए देखा गया है। हम अपने सप्लायर्स से हम किस तरीके से बिजनेस करते हैं वो हम छुपाते थे। क्यों? क्योंकि हमें ये डर था कि कहीं वो हमारा कॉम्पिटिटर ना बन जाए। लेकिन जो द न्यू इंडिया है सीन कि आपको छुपाने से आप कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, राइट? आप एक बिजनेस अब एक ओपन बुक की तरह है, देखिए, राइट? द वे वी आर मूविंग फॉर लास्ट 20-30 years, राइट? वी हैव सीन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन वेरियस बिजनेसेस। रिसेंटली आपने जीडीपी फिगर्स भी देखे होंगे, वी क्रॉस्ड, राइट, a very good milestone. So this is all, a good sign that supply chain is working in the industries, right? अब ये जो प्राइस कंपटीशन था ना, जो प्राइस वॉर था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका था इंडिया में। बट प्राइस वॉर के अलावा भी बहुत सारी बिट्स थी जिसको सप्लाई चेन ने ओवरकम किया है, राइट? अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं कि हम नेस्ले का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? वी ऑल ईट मैगी, राइट? मैगी हम ने इट इज अ हाउस होल्ड नेम। अब ये जो मैगी प्रोडक्ट है ना, इस पे अगर आप नेस्ले का मार्जिन देखेंगे रिटेलर को तो बहुत कम है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी इन द मार्केट, इट विल बी इन द मार्केट, और कस्टमर डिमांड करते हुए आता है उस प्रोडक्ट को। लेकिन वो एक चॉकलेट आता था मिल्की बार, राइट? उसको हमें मार्केट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज उसको कस्टमर डिमांड करते हुए नहीं आएगा, right? So there are so many line items with these FMCG companies, और उनको ये मिक्स एंड मैच बनाना पड़ता है, राइट? कहीं का प्रॉफिट निकाल के किसी ऐसे प्रोडक्ट में डालना पड़ता है जिससे कि उस प्रोडक्ट की भी सेल एक टाइम के बाद में इंक्रीज हो सके, राइट? बिकॉज सिर्फ एक लाइन आइटम को लेके, एक प्रोडक्ट को लेके नेस्ले जिंदा नहीं है इतने सालों से मार्केट में, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू, और ये चेंज ऑफ सिनेरियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए।
अब इसको समझने के लिए राइट हम वापस से हमारे को एग्जाम्पल पे चलते हैं, राइट, ब्रेड के एग्जाम्पल पे, राइट। कस्टमर का एक पर्टिकुलर डिमांड पैटर्न होगा ब्रेड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब जब कस्टमर का जो, इसको हम डायनामिक्स भी बोल सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। कस्टमर का ऑर्डरिंग पैटर्न है ना, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ब्रेड का, राइट। इट विल बी इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट, जैसे कि साइन कर्व, राइट। सो अब ट्रस्ट एंड ट्रस्ट तरीका पैटर्न रहेगा, किसी दिन डिमांड होगा, किसी दिन नहीं होगा उस एरिया में। नेक्स्ट हम अपनी सप्लाई चेन के नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर पे चलते हैं। जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में रिटेलर एक ब्रेड को ऑर्डर करता है ना, तो उसका नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर ये सोचता है कि मैं थोड़ा सा इसमें बफर ऐड कर लूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे कि उसके एरिया में 100 ब्रेड्स बेच रहा है वो ऑन एन एवरेज डे, तो वो रिटेलर ऑर्डर करता है 105, 110। अब वो 110 किसको ऑर्डर करेगा? रिटेलर को। रिटेलर करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इसमें अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड कर देता है टू इंक्रीज द बिजनेस। बोले 110 अगर ये बेच रहा है तो लेट्स इंक्रीज दैट टू 160 या 150। ऐसे ही सारे कॉस्ट सेंटर्स अपनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड कर लेते हैं, राइट। मैं आपको एक ग्राफ से इसको बताता हूँ, राइट। यू लुक एट द ऑर्डरिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स और देखिए कैसे क्रस्ट एंड ट्रफ्स बन रहे हैं, राइट। द डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर्स, द रिटेलर ऑर्डर्स, द प्रोडक्शन ऑर्डर्स एंड द कस्टमर ऑर्डर्स, ठीक, राइट। और ये इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है, और आप ये सोचिए कि इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है तो सप्लाई चेन कितना बल्कि हो जाएगा, राइट। कितना वेरिएशन रहेगा सप्लाई चेन में हमारे। इट इज नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, राइट। अब कुछ लोगों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जस्ट इन टाइम एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे कि जहां पे जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल कर दी जाए। बट जस्ट इन टाइम एक ऐसी फिलॉसफी है जिससे हम वेस्ट रिडक्शन करते हैं, ना कि हमें मटेरियल को राइट टाइम राइट प्लेस। और ये कंसेप्ट बहुत गलत, आउटडेटेड, we can say it's quite outdated, more of a theoretical. बिल्कुल it is a waste elimination technique। और यहाँ पे जस्ट इन टाइम का बहुत इफेक्टिवली कंपनीज जो यूज कर रही हैं, राइट, वो वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए कर रही हैं। जो 7 प्रकार के इंडस्ट्रीज में वेस्ट कहे गए हैं ना, उसकी बात हम किसी और दिन करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्शन है, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कितना ज्यादा बना लेता है प्रोडक्ट को, और जो कस्टमर है वो डिमांड ही इतना सा कर रहा है। एक रीसेंट मुझे एग्जांपल याद आ रहा है कि जब गवर्नमेंट ने अपने भारत स्टेज व्हीकल्स के नोमेनक्लेचर को चेंज किया था, जब वो BS6 को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तब उन्होंने इंडस्ट्रीज को 3 साल 2 साल दिए ताकि उनकी जो पाइपलाइन में इन्वेंट्री थी उसको वो खत्म कर सके, राइट। जो उनके पास में ओल्ड स्टॉक था उसको वो खत्म कर सके। अब रिसेंटली आप अगर कहीं कार खरीदने जाएंगे तो देयर इज अ वेटिंग। वन ऑफ द रीजंस ऑब्वियसली देयर इज आफ्टर कोविड की वो चिप का जो शॉर्टेजेस है उसका, बट इससे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि नाउ वी हैव रियलाइज्ड लाइक कि एक कार को कस्टमर तक पहुंचने तक का लीड टाइम 15 डेज माना है इंडिया में, राइट। उस 15 डेज को आप अगर, जैसे आप मोबाइल फोन लेने जाएंगे तो कभी आप उसके लिए वेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट एडवांस मॉडल ले लेंगे 1000-2000 रुपए ऊपर देके। लेकिन जब आप कार लेने जाएंगे तो आप वेट करेंगे क्योंकि वो आपकी पसंदीदा कार है। आप ऐसा नहीं होगा कि हुंडई से आप किसी और की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या मारुति से, और जो आपको पसंद है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन दैट। नॉट ऑल शोरूम कीप्स ऑल देयर मॉडल इन दिस शोरूम। बिल्कुल। तो द कंपनीज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज रियलाइज्ड दिस, राइट। इसलिए अब जैसे ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, ऐसी कंपनीज का एक्चुअल लीड टाइम 104 डेज है शेल्फ तक पहुंचने का। आपका जो कॉर्नफ्लेक्स अगर बिग बाजार पहुंचता है ना, तो उसको 104 दिन लगते हैं उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिग बाजार को पहुंचने में। और इमेजिन करिए ऐसे सिनेरियो में जहां पे उस कॉर्नफ्लेक्स की एक्सपायरी 12 महीने बाद है, तो 3 महीने तो उसके लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन में घूमते घूमते ही निकल जाएंगे, राइट। तो इफेक्टिवली आपको 7 से 8 महीने मिलते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, राइट। तो जब आप पूरी सप्लाई चेन का थ्रूपुट कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपको एक्चुअल लीड टाइम पता लगने लगता है। और जब आपको एक्चुअल लीड टाइम पता लगने लगता है ना, तो आप वेरिएबिलिटी को कम करना चाहते हैं। और ये वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस
इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि ये वेरिएबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर ये वेरिएबिलिटी नहीं होगी ना तो हम आज बिजनेस की बात करते हैं, अगर ये वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो हम पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेरिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, राइट। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप अलग अलग वॉल्यूम और वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग आप आपके क्वाड्रेंट में रख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज पे है। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपका तभी रिजॉल्व हो जाएगा जब आप आपके प्रोडक्ट के सही क्वाड्रेंट को समझ लेंगे, राइट। उसको इसलिए इतनी ज़्यादा तवज्जो दी गई है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि वो एक फर्स्ट स्टेज है आपको आपकी सप्लाई चेन की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, आपकी सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए, राइट। सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजीज की अगर बात करी जाए तो बहुत सारी कंपनीज अपने वे में अपनी सप्लाई चेन को डिजाइन करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, राइट। सबसे पहले तो वो डिजाइन करने के लिए स्ट्रैटेजीज को बनाती हैं, प्रोडक्ट तो बहुत बाद में सेल आउट करती हैं। सबसे पहले उन स्ट्रैटेजीज को इसलिए बनाया जाता है ताकि उनकी सप्लाई चेन डिजाइन हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है वो कितने प्रकार की हैं, राइट। Yes, sir. Before that, I just want to ask. Sorry to interrupt you, but you discuss about the quadrant part for our audience. If you can brief little bit about just for a 30-second, 40-second, what actually the quadrant you discuss about the. Okay. See, you draw a box, Yeah. right? Divide it into 4, right? And then on your x-axis, you frame it as volume, right? Okay. Volume will increase when you move on the quadrant on x-axis towards right. Towards right. But on your y side, right, what you do is you put the variability on. Okay. Now on the first quadrant, where the volume and variability is very low, very low, we put products like books, right? Like any product which is not in that much volume, variability is also low. Variability is very low. A book will be a book; it cannot be changed, right? When you increase the volume, right, you maximize your volumes and you move forward in your quadrant. Again, the variability will be low, right? Your FMCG products, your biscuits, your breads, all your FMCG products, these you put them very very fast moving products. These are, right, your household products, जिनका जो शेल्फ पे जाते सही थी बिकते हैं, राइट। तो उन सारे प्रोडक्ट्स को हम उन कैटेगरी में रखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू योर थर्ड क्वाड्रेंट इन योर बॉक्स, व्हिच इज आई वुड लाइक टू पुट प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर्स, राइट, जिनका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है। एवरी हाउस होल्ड नीड्स चेयर्स, टेबल, फर्नीचर, all sort of furniture. But variability कितने सारे मॉडल्स हैं, आपको हो सकता है और कोई प्रोडक्ट और कोई कलर पसंद है, मुझे हो सकता है और कोई कलर पसंद है, तो the variability is increasing there, right? And then again we come back to fourth quadrant where volume is less but variability is very high. Your electronic products, and when you see your electronic products now, उसमें बहुत ज़्यादा variability है. Somebody is having 30 GB, 40 GB, 50 GB. Requirement change होता जा रहा है और उस हिसाब से ये the electronic configuration is also changing. तो बहुत ज़्यादा variability. आप देखिए if I take an example of CyberShot, they bring a new CyberShot every 3 months, right? That's their supply chain strategy. Apple, they bring every new iPhone. वो स्टीव जॉब्स की पुण्यतिथि पे वो उसको लॉन्च कर देते हैं, राइट? आई एम सॉरी टू बिकॉज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में ये पुण्यतिथि एंड ऑल दैट दे विल गेट टू नो अबाउट आफ्टर दिस एपिसोड। नहीं चलता है ये सब, तो बट एनीवे इट इज समथिंग लाइक एवरी प्रोडक्ट हैज अ लाइफ, राइट, इन द मार्केट। एंड क्यों उसको 1 साल बाद ही लॉन्च किया जा रहा है, ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन अगर मैं एक ही लाइन में डिफाइन करूं तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स और रिवर्स सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए वो पर्टिकुलर टाइम के लिए उस प्रोडक्ट को मार्केट में दिया जाता है और उसके बाद में उसका न्यूअर वर्जन निकाला जाता है, राइट? और दूसरा उसका आंसर ये है कि बिकॉज जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे तो
वहां पे आपका डाई कॉस्ट, आपका और जो दूसरा कॉस्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने का, वो अगेन इट विल इंक्रीज, राइट? सो टू यू नो overcome that cost, these companies have a particular lifespan of these products in the market, right? तो सप्लाई चेन का एक बहुत मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को एक बात बोलता हूँ, एंड आई ट्रूली बिलीव इट कि time is a mathematical property, right? Everything changes with respect to time, either on the positive side or on the negative side. अगर आपने समय के पहले कोई प्रोडक्ट मार्केट में दे दिया तो उस टेक्नोलॉजी को अगर मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दैट इज टू अर्ली, दैट विल हैव अ नेगेटिव, that won't be accepted. Maybe it will create negative image in the future also. राइट? और ऐसी कंपनी जो सही समय का इंतजार करती हैं, उस सही समय का इंतजार इसलिए करती हैं ताकि मार्केट उसे एक्सेप्ट कर सके. टू अर्ली कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो एकदम आप देखते होंगे दे फेल मैसिवली, राइट? Because they bring the technology too early into the market. Yeah, quite true, right? और इंडिया एक ऐसा मार्केट है, we have like mixed sort of people. We have techno savvy. Right. We have people who are very used to the technology, and there are people. तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है जब भी हम एक प्रोडक्ट को मार्केट में दें, राइट? तो एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है, और सप्लाई चेन इसको बहुत इफेक्टिवली, जिसको बोला जाए टाइमली, इफेक्टिवली मैनेज करके इन चीजों को ओवरकम कर देता है आपके बिजनेस में, राइट? Yeah. So you were saying about the strategies, but you were introducing the strategies in the supply chain. So I Right. cut you in between the. नहीं, it's okay, right? Let's talk about strategies. देखिए आज की तारीख में इंडिया में कौन सी कंपनीज सप्लाई चेन अपनी डिजाइन करती हैं, तो कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करती हैं, ठीक है? सबसे पहली तो हर एक कंपनी को कॉस्ट रिडक्शन बहुत पसंद है, राइट? एवरीवन वांट्स द कॉस्ट रिडक्शन. तो इसके लिए जो कंपनी अपनी सप्लाई चेन्स को डिजाइन करती हैं वो लीन सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी है, राइट? आज की तारीख में जो हमारे सप्लायर्स हैं, दे आर नॉट ओनली सप्लायर्स, दे आर अवर स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स. तो वो जो लीन कंसेप्ट है ना, वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सप्लायर तक चला गया, राइट? आप देखते होंगे कि ये रिलायंस फ्रेश सारी की कंपनीज जो फ्रेश प्रोड्यूस डायरेक्ट फ्रॉम फार्म उठा रही हैं, वो सीड्स भी फार्मर्स को खुद दे रहे हैं ताकि जो सप्लाई चेन में वेरिएबिलिटी है उसको कम किया जा सके, राइट? दैट्स द बेसिक रीजन, और कोई रीजन नहीं है जो बीच के मीडिएटर्स को हटाने का. अब बीच के मीडिएटर्स को अगर वो हटा के डायरेक्ट टू फार्म जा रहा है और वहां से फ्रेश प्रोड्यूस को ग्रो करा के अपने आउटलेट्स पे बिकवा रहा है, तो उसने अपनी सप्लाई चेन की जो बल्कीनेस थी उसको खत्म कर दिया, राइट? तो ये एक अपने आप में स्ट्रैटेजीज, लेकिन कई कंपनीज इससे डिसएग्री करती है, वो इस स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो करती क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ही वैसे हैं, राइट? जैसे कि ज़ारा सरी की जो एपरल मैन्युफैक्चरर्स हैं, राइट? एंड वो क्या करते हैं, वो लीन को नहीं समझते हैं. वो बोलते हैं कि हमें तो रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाना है. अब रेस्पॉन्सिवनेस जब उन्हें बढ़ाना है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी सप्लाई चेन को एजाइल बना देते हैं, राइट? दैट्स द एजाइल सप्लाई चेन स्ट्रेटजी. अब जहां पे आप ये समझ लीजिए कि आपका क्लोथ्स को कहीं स्टिच कराने जाते हैं, तो आपका टेलर आपको बोलता है कि राइट 3 days 4 days में आपको स्टिच करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देगा. तो दैट इज एजाइल सप्लाई चेन. वो आपकी रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है उस वे में. वहां पे रिस्पॉन्सिवनेस है कि 3 दिन में उस रिस्पॉन्सिवनेस वाले फैक्टर को कंप्लीट करना है, कस्टमाइज्ड. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और कस्टमाइजेशन आपने बहुत अच्छा शब्द बोला. जहां पे कस्टमाइजेशन है वो सारी कंपनीज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हैं, एजाइल सप्लाई चेन्स की तरफ हैं, एजाइल कंसेप्ट्स की तरफ हैं, और वो इन्हीं स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं. लेकिन कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि ना लीन है ना एजाइल है. अब इनका क्या किया जाएगा? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना मेरी सप्लाई चेन की, उसके पहले वो लोग क्या करते हैं, लीन कंसेप्ट यूज करते हैं कि हम अपने सप्लायर को तो दबाएंगे कॉस्ट के लिए जितना कॉस्ट रिडक्शन हो सके, लेकिन हम अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप रुको 10 दिन बाद हम आपको प्रोडक्ट देंगे. वहां पे वो शेल्फ पे हमेशा उस प्रोडक्ट को अवेलेबल रखेंगे, उसको एजाइल बनाएंगे. तो यहाँ पे ऐसी कंपनीज डीकपल पॉइंट्स का यूज करती हैं जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पहले सप्लाई चेन में क्या कर रही है, वो अपनी सप्लाई चेन को लीन सप्लाई चेन बना रही है.
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे वो अपनी सप्लाई चेन को क्या कर रही हैं, एजाइल बना रही हैं। और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो एक डीकपल पॉइंट की तरह है। और ये डीकपल पॉइंट जो हम क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे ना, वो हर जगह, क्योंकि वॉल्यूम और वेरिएबिलिटी जो है ना वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे जैसे प्रोडक्ट एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाएगा तो उसकी वेरिएबिलिटी और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा उस टाइम। अगर हम एक ही स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे तो वो हमें रिजल्ट नहीं देने वाली, बिकॉज आपका अगर ग्रोथ स्टेज पे प्रोडक्ट पहुंच गया और आप इंट्रोडक्टरी स्टेज की स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे तो आप जितना पैसा कमा रहे हैं ना सप्लाई चेन में या कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं वो सब आप लगा देंगे एक टाइम के बाद, राइट। अब बात करी जाए कि ये ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कैसे है कि कंपनीज आर इंटरेस्टेड, राइट। I was about to question it becomes so much important these days. Every companies are taking so much interest in supply chain management. So ठीक है, अब देखिए कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यू नो आई वुड लाइक टू आंसर इट वेरी वेरी ऑनेस्टली, राइट। आई एम नॉट आई डोंट वांट टू बी बायस्ड। हमारी इंडिया में कुछ गलतियां हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग में, राइट। कैसे कोलगेट सरी की बड़ी जो एमएनसीज हैं, राइट, वो चाइना पहुंचती हैं और एक टूथब्रश जो कि 60 पैसे का पड़ रहा है उनको, वो इंडिया में आके 10 रुपए 12 रुपए का बेच रही हैं, राइट। और आपको याद होगा ऐसी कंपनीज थी इंडिया में, अजंता सरी की कंपनी जो एक जमाने में टूथब्रश बनाती थी, शायद हमारे फादर और ग्रैंडफादर्स ओके यू हैव आल्सो यूज्ड, देन बहुत बढ़िया बात है। ऐसी कंपनीज का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया जब से चाइना हैज स्टार्टेड फ्लडिंग ऑल दिस इनटू अदर कंट्रीज, और वो अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेच रहा है या बांग्लादेश में बेच रहा है या किसी और जगह भी बेच रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्रीज का इनोवेशन और डेवलपमेंट रुक गया, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट और इनोवेशन होना चाहिए था वो रुक गया, तो काफी सारी चीजें सप्लाई चेन में आगे जाके रुक गई, राइट। अब हमने पिछले 15 से 20 सालों में ये कोशिश करी है मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चर इन इंडिया के थ्रू, एंड जो एसएमईज हैं उनको काफी ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, PLI स्कीम, राइट। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर बेनिफिट ले सकता है। बट आज की तारीख में जिस युग में हम बिजनेस कर रहे हैं ना, वहां पे असेंबली इज वेरी इजी या मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इजी, राइट। यू गो टू a company in India wants to go to a western world और वो वहां से कुछ टेक्नोलॉजी लेके आए और मैन्युफैक्चरिंग कर ले। मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी वेरी इजी पार्ट टू बी ऑनेस्ट, राइट। अब ये मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ, राइट, इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ आगे। The hard part nowadays for business is managing the supplies, right? The flow of material from one cost center to another, right? वो सबसे important हो चुका है और वो सबसे critical हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप शेल्फ पे नहीं प्रोडक्ट को रखेंगे तो और किसी का प्रोडक्ट, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आगे निकल जाएगा, तो आपको शेल्फ पे हमेशा अवेलेबल रहना है उन स्टोर्स में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। और एक अच्छी सप्लाई चेन इट स्ट्रिप्स ऑफ ऑल दीज जो क्रस्ट एंड ट्रफ्स मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, वो सबको मिनिमाइज कर देती है और इट टेक स्ट्रिप्स अवे द टाइम, द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी एज वेल, और उस टाइम को रिड्यूस करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करती है और सप्लाई चेन को एनहांस करती है, राइट। अब ये बोल्ड स्टेटमेंट इसलिए भी मैंने दिया कि कस्टमर इज बिकमिंग मोर फैशनेबल आज की तारीख में, राइट। फैशनेबल इन नॉट दैट सेंस, बट फैशनेबल इन उनका जो फ्लेवर है ना वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट। कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और वो तुरंत में मार्केट से आउट हो जाता है, फिर पीछे से और कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है और वो फ्लेवर कुछ दिन कस्टमर के पास में रहता है, फिर चेंज हो जाता है, राइट। थिंग्स आर चेंजिंग बट अगेन जस्टिफाइंग माई दिस स्टेटमेंट इज कि अगर जो कंपनीज, अभी थोड़ी देर पहले मैं लीन की आपको बात कर रहा था ना, जो लीन सप्लाई चेन में कंपनीज रहती हैं वो अगर 5% रिडक्शन करती हैं ना अपनी कहाँ पे,
अपनी अपस्ट्रीम में, अपनी सप्लाई चेन के, तो वो ये माना गया है कि अपनी टर्नओवर को 25% से डाउनस्ट्रीम पे बढ़ा रही हैं। Okay. तो देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट सेविंग भी कंपनीज के लिए। बट कॉस्ट सेविंग अपने आप में भी क्राइटेरिया नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं सप्लाई चेन में जिसको एजाइल सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी के थ्रू केटर किया। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपनी सप्लाई चेन को कैसे डिजाइन कर रहे हैं। Okay. ठीक है? So we can say that the next decade is for India in terms of supply chain management or being a manufacturing hub, because you are saying we are more fashionable and we are taking so much interest. So can we say that? I just want to know from your side. Right. See, for world, India is a very big market. Yeah. और देखिए हम अपने मार्केट को किसी को FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, ऐसे ही नहीं दे देंगे। राइट? क्यों नहीं दे देंगे? हम उन्हीं सेक्टर्स में FDI को आज की तारीख में इंडिया में बुला रहे हैं जिसमें हमें जरूरत है। बाकी सेक्टर्स में हम खुद डेवलप हो रहे हैं। राइट? उनकी सप्लाई चेन्स को हम खुद डेवलप कर रहे हैं। और इसलिए कंपनीज जो है ना, उनका फोकस बहुत ज्यादा कॉस्ट रिडक्शंस पे, रिड्यूसिंग द लीड टाइम्स पे, और अपने टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए मार्केट में। राइट? अपने ये उस तरीके से है जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास में अगर मैं 100 रुपीज का नोट देता हूं और आप उस 100 रुपीज को एक साल में कितनी बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप उसको टर्न अराउंड कितनी बार कर रहे हैं उस 100 रुपए के नोट को। अगर कोई कंपनी उस 100 रुपए को 20 बार घुमा रही है तो उसका टर्न अराउंड 20 टाइम्स हो गया, बहुत अच्छा है। अगर कोई कंपनी उसको 30 बार घुमा रही है तो देखिए कितना अच्छा हो गया। अब कंपटीशन जो FMCG सेक्टर में ना, वो ये नहीं रह गया है कि बिकॉज मनी का जो फ्लो है ना बहुत इजी कर दिया आज की तारीख में गवर्नमेंट ने। द बैंक्स, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, UPI, these people are, you know, अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए दे आर ऑलवेज रेडी, दे आर गिविंग यू वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये सारे लोग बैठे हैं आपको पैसा देने के लिए। गॉन आर द डेज कि पैसे का एक्सेस एक बिजनेसमैन को बहुत डिफिकल्ट था। आज की तारीख में वी हैव रिलैक्स द नॉर्म्स, यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन, बिकम एन एंटरप्रेन्योर while taking loan को बुरा नहीं माना जा रहा है आज की तारीख में इंडिया में। देयर वर टाइम कि 10-15 साल पहले, 20 साल पहले अगर हम अपने फादर्स या ग्रैंड फादर्स से लोन लेने की बात करें तो दे यूज्ड टू थिंक इट एज अ वेरी बैड थिंग। बट आज की तारीख में अगर आप सही हैं, आप उस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सहारा लीजिए और आगे बढ़िए। They are financing our ideas also, not in just looking at the facility or collateral. They are financing the ideas. बिल्कुल इवन दीज स्टार्टअप्स के आइडियाज को जो फंड किया जा रहा है, राइट? इवन nowadays in digital India everything is digitalized by the learned prime minister, so things will be improving and becoming transparent also. very transparent. After GST the business has been enhanced. जो uncategorized market था ना, उसको भी categorized की category में आने को मजबूर कर दिया गया ये समझ लीजिए, राइट? उनको मजबूर, जो हमारा दिल्ली बेस्ड मार्केट हुआ करता था, बॉम्बे बेस्ड मार्केट हुआ करता था ना, दे यूज्ड टू फ्लड मटेरियल लाइक विदाउट बिल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसको जब कैटेगराइज कर दिया गया ना, तो वो लोग बहुत खुश हैं जो, राइट, हमारे यहाँ पे चलते हैं ना 2 नंबर और 1 नंबर का बिजनेस, तो 1 नंबर के बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है बिकॉज द मॉनिटरिंग, राइट, डेफिनेटली।